सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। IFPH द्वारा आयोजित हिंदी वेबिनार श्रृंखला के 1156वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के इस ज्ञानवर्धक वेबिनार में एक अत्यंत प्रतिष्ठित एवं अनुभवी शिक्षिका का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, डॉक्टर अमृतप्रीत कौर। डॉक्टर अमृतप्रीत कौर ने BHMS तथा MD की उपाधि प्राप्त की है और वर्तमान में वे PhD स्कॉलर के रूप में शोध कार्य में संलग्न हैं। उनकी शैक्षणिक यात्रा निरंतर प्रगति, अनुसंधान, समर्पण एवं होम्योपैथी के प्रति गहन निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये वर्तमान में विभागाध्यक्ष, होम्योपैथिक फार्मेसी विभाग, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सेक्टर 26 चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। पिछले 12 वर्षों से शिक्षण कार्य में सक्रिय रहते हुए उन्होंने न केवल विद्यार्थियों को विषय का गहन ज्ञान प्रदान किया है, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा व्यवहारिक कौशल से भी समृद्ध किया है। होम्योपैथिक फार्मेसी जैसे आधारभूत एवं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय में उनका विशेष अनुभव औषध निर्माण की सूक्ष्मताओं को समझने तथा शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक प्रेरणादायी वक्ता एवं मार्गदर्शक बनाती है। आज के वेबिनार में उनके विचार, अनुभव एवं शोध दृष्टि हम सभी के लिए निश्चय ही लाभकारी होंगे। आइए हम सब मिलकर डॉक्टर अमृतप्रीत कौर का हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें इस मंच पे आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर के आज के टॉपिक के व्याख्यान का टॉपिक डिप्रेसिव इलनेस इन एल्डरली अ होम्योपैथिक अप्रोच है। मैडम, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? वीडियो ऑन किया हुआ है मैम, मैंने प्लीज चेक करिए एक बार। और यस मैम, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, बट मेरी पीपीटी विजिबल नहीं हो रही है। यस मैम, आपकी PPT अभी विजिबल नहीं हो रही है। थोड़ी आई देर एम पहले ट्राइंग। विजिबल हो रही थी, पर आपने नॉट सीन वाला कुछ वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है क्या? नहीं मैम, मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ। प्लीज लेट मी नो व्हेन माय पीपीटी ओके इज विजिबल। ओके मैम। मैम प्लीज सी वेदर इट इज विजिबल। नो मैम, स्टिल नॉट विजिबल। हाउ शुड आई मेक इट विजिबल देन? वन सेक। Please see whether it is visible now. Yes, yes. Okay. So first of all, ma'am has introduced me. और आप फिर से मैं अपना I am Dr. Amritpreet Kaur. I am working in Homeopathic Medical College. I have done BHMS and MD from Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot. And presently I am doing PhD from Tantia University, Sri Ganganagar, Rajasthan, and working as Associate Professor and HOD in Department of Homeopathic Pharmacy. And I'm teaching since 14 years in Homeopathic Medical College, Chandigarh. So today I have chosen topic depressive illness in elderly for today's lecture. Its clinical overview and homeopathic management. Why I have chosen this topic? The reason is because depression is unrecognized, it is undiagnosed, and specifically our aging population has increased as per the demographic studies, and this requires immediate attention. So depression is not a normal consequence of aging. So what is concept of mental health? According to WHO, World Health Organization, mental health is a state of emotional, psychological, and social well-being. It enables individual to cope with life stresses, function
productively and maintain relationships. In geriatrics, mental health includes preservation of dignity, cognitive clarity, emotional resilience, and social connectedness. If all these things are present, so we can say a person is mentally healthy. But then also it's a relative definition. India is experiencing rapid demographic aging, population more than 60 years of age. In by WHO, in 2024, it was told that 11% population is above 60 years, and it is projected that in 2050, about 21 population, it means almost double, will be above 60 years. It means our elderly adults are increasing in number. So their increased longevity is good, but it is accompanied by many other burdens: chronic physical illnesses, chronic mental illnesses. Mental health disorders, they significantly contribute to disability, dependency, and caregiver stress in elderly Indians. So, as mental health will decline, so patient will be disabled and will be more dependent, and the other family members and caregivers, their stress will naturally increase. So again, emphasizing, in year 2024, the number of persons above or equal to 60 years of age was 157 million. That amounts to 11% of total population. And by 2050, it is estimated that it will increase to 21%, that is 347 million older adults. So, rapidly increasing global population, multiple psychosocial stresses faced by elderly, depression contributing significantly to their disability, and most of the cases remaining undiagnosed, and physical health affected adversely by depression. So these are the facts which forced me to choose this topic for today's lecture. So WHO data, approximately 14% of adults, they are living with mental disorders. And amongst these disorders, depression, it is one of the most common disorder. Anxiety frequently coexists. Anxiety coexists with many cases of depression. Cognitive disorders, if present, may complicate diagnosis. For example, dementia, if present, it will increase the disease burden, it will increase the problems. So, consequences, as we have already discussed in the previous slide, it will lead to increased disability, reduced quality of life, increased health care cost, and greater caregiver burdens. सॉरी टू इंटरफेयर मैम। अगर आप थोड़ा हिंदी भी इसमें इंक्लूड करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये हिंदी सेशन है तो। हाँ हाँ, सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके। ओके। तो जो डिप्रेशन है, वो हमारा जैसे लेट लाइफ डिप्रेशन, हम इसको आज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम एल्डरली पेशेंट्स के डिप्रेशन को पर्टिकुलरली आज हमने इसमें लिया है। तो इसमें जो हम कारण समझ रहे हैं, वो 3 फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन को कर सकते हैं बुजुर्गों में। एक जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हम कहते हैं, उसमें क्रोनिक डिजीजेस हैं। जैसे क्रोनिक डिजीजेस हैं जिससे एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो सफर हो रही है। तो उनमें जैसे ब्लड प्रेशर ही है, वो क्रोनिक है, दवाई लेने की टेंशन है, दवाई खरीदने का खर्चा है, उसके साथ फिर डायूरेसिस हो जाती है। तो या ओस्टियोआर्थराइटिस है, पेशेंट को पेन है घुटनों में हर टाइम, तो पेन हर टाइम रहता है, उसकी वजह से पेशेंट का जो मूड है वो भी डिस्टर्ब रहता है। तो ये चीजें जो है उसकी ब्रेन में ऑल्टर एक्टिविटीज करके डिप्रेशन की तरफ उस पेशेंट को लेके जाते हैं। फिर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, पॉलीफार्मेसी, बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं हमारे बुजुर्ग, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं उनको। पेन सिंड्रोम्स, पेन्स रहती हैं
ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन रहती है, वैसे पेन्स रहती हैं। तो पेन्स की वजह से मूड जो है उनका वो डिप्रेस्ड रहता है, जिसकी वजह से उनकी अल्टीमेटली उनके जो ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, और उसकी वजह से डिप्रेस्ड मूड रहना शुरू हो जाता है। तो वो डिप्रेशन की उस डिजीज फ्रेम में आ जाते हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बेरीवमेंट है, जैसे लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई, या जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उसमें भी किसी का डेथ हो गया, या दूर चले गए, दूर शिफ्ट हो गए बच्चे, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पे हम आ गए, तो ये एक स्ट्रेस रहता है हमारे बुजुर्गों पे। देन लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं, या डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो फिजिकली मूवमेंट के लिए भी हम जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं, घर के काम के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, बाहर के काम के लिए। तो ये चीजें भी उनपे एक बर्डन बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं, जो बाद में फिर डिप्रेशन का रूप ले लेता है। देन फियर ऑफ इलनेस, जैसे इस उम्र में हमें उनको पहले से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और आगे बीमारी का डर, डेथ का डर, ये रहता है, अपनी डेथ का डर, अपने लाइफ पार्टनर की डेथ का डर, अपने बच्चों का। तो फियर ऑफ इलनेस। देन रिड्यूस्ड सेल्फ एस्टीम, क्योंकि अब डिपेंडेंसी जो है बढ़ गई है, इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है, तो उसकी वजह से सेल्फ एस्टीम जो है उसको धक्का पहुंचता है, रिड्यूस हो जाती है, हमेशा दिमाग पे, दिल पे बोझ रहता है। फिर सोशल फैक्टर्स में, जैसे आजकल बच्चों को जॉब्स बाहर मिलती है, उनको दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, ठीक, और न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन ज्यादा है, तो आइसोलेशन फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल डिपेंडेंस बढ़ जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो डिप्रेशन का एक इटियोलॉजी, कॉजेस, कारण जो है वो बन जाती है। अगर हम बोलें कि डिप्रेशन और नॉर्मल एजिंग, अब फॉरगेटफुलनेस अगर थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, वो नॉर्मल एजिंग का पार्ट है। जो एक नॉर्मल, हम बुजुर्ग इस अवस्था में जाते हैं तो हमारा ये नॉर्मल एजिंग का पार्ट है। फिर उसके बाद स्टेमिना कम हो जाता है, मेंटल स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना, रेस्ट करने का नीड रहता है, तो ये नॉर्मल एजिंग है। और हमें इन चीजों को डिफ्रेंशिएट करना है, अगर हमें प्रॉपर पेशेंट को डायग्नोस करना है कि क्या ये एजिंग है, या क्या ये डिमेंशिया है, या क्या ये डिप्रेशन है। तो इसके लिए हमें इन बीमारियों के बारे में एक डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। अब डिप्रेशन में भी हमारे पास मरीज जब सामने सीधा हमारी क्लिनिक पे आएगा, तो उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं उसमें वो ज्यादा हमें नहीं मिलते हैं, ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स हमें मिलते हैं। कई बार हमें सैडनेस हो जाता है कि चलो हमारा मूड जो है वो अच्छा नहीं रहता, नींद में बड़ी तकलीफ रहती है, थकावट रहती है, विड्रॉल, सोशल जो है वो उसमें सोशल सर्कल में ज्यादा नहीं मिक्सअप हो रहे हैं, अपना विड्रॉ हो गए हैं। लेकिन हिडन लेयर में जो कभी डिस्कस ही नहीं हो पाता है, होपलेसनेस है, उनको जो आशाएं हैं वो खत्म हो रही हैं, निराशावादी हो रहे हैं, वर्थलेसनेस, क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ रही है, डिसेबिलिटी बढ़ रही है, तो सेल्फ वर्थ जो है उनको कम लग रही है, लोनलीनेस, वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं। तो ये हिडन लेयर है, जो हमें पेशेंट की डीप, जब हम डेप्थ में हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, जब हम डिटेल में हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो ये चीजें निकल के आती हैं। पर जब पेशेंट आता है सुपरफिशियल, जब ऊपर ऊपर से चीफ कंप्लेंट ले लें, तो उसमें सोमैटिक जो बॉडीली सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं, नींद ना आना, इनडाइजेशन जो है, या बॉडी पेन्स हैं, या फॉरगेटफुलनेस है, ऐसे पेशेंट जो है हमारे पास ऐसे सिम्टम्स निकल के आएंगे। अब डिप्रेशन के जो अभी मैंने सिम्टम्स आपसे डिस्कस किए हैं, उसमें अगर हम उनको अलग अलग क्लासिफाई करने की कोशिश करें, तो इमोशनल सिम्टम्स में हम सैडनेस को रख सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। होपलेसनेस, जो निराशा उनमें आ जाती है, वो हम इमोशनल सिम्टम्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। देन गिल्ट,
गिल्ट आ जाता है, क्योंकि वो केयर गिवर पे बहुत डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है, हर चीज के लिए उनकी डिपेंडेंसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ एस्टीम को भी ठेस पहुंच रही है। उनको सेल्फ वर्थ अपने आप में लग रहा है कि मेरी वैल्यू नहीं है, अपने आप में वैल्यू अपनी कम लग रही है। गिल्ट आ रहा है कि मैं कितना बर्डन बन गया हूं सब पे, तो वो गिल्ट आ जाता है। फिर उस वजह से अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स में फिर इरिटेबिलिटी आ जाती है, और ये इमोशनल स्फीयर हो जाता है इसका, डिप्रेशन का। देन कोग्निटिव सिम्टम्स, जो ब्रेन रिलेटेड हमारे कंसंट्रेशन जो है वो पुअर हो जाती है, बहुत देर तक बहुत चीजों में ध्यान नहीं लग पाता, लगाने की कोशिश करते हैं तो वो कम रहता है। मेमोरी, उनको अपनी याददाश्त में भी कमजोरी महसूस होती है, और उनको ये लगता है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसिसिव है। इनडिसिसिवनेस उनकी डिप्रेशन के साथ रिलेटेड भी है, और उनकी जो एजिंग के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो डिपेंडेंसी वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी वजह से भी इनडिसिसिव जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो फैसला लेने की क्षमता है, कई बार क्षमता होती है लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं, इनडिसिसिव। और कई बार कोग्निटिवली ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि मेमोरी पे इफेक्ट आ रहा है, कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आ रहा है, और उनको डिपेंडेंसी ज्यादा हो रही है। फिर फिजिकल में हम फिटीक, थकावट रहती है हर टाइम, ज्यादातर पेशेंट आके बोलेगा थकावट रहती है, स्लीप में डिस्टरबेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, दर्दों की तकलीफ बोलेंगे, घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द है, सिर में दर्द रहता है। तो ऐसी चीजें, तो डेप्थ में हिस्ट्री टेकिंग करें तो वो जो छुपा हुआ हिडन डिप्रेशन है वो फिर हमें मिलता है पेशेंट में। तो सबसे पहले एज अ फिजिशियन अगर मैं अपनी क्लिनिक में बैठी हूँ, तो मेरे पास एक उसको डिप्रेशन को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, रिकग्नाइज करना सिम्टम्स कि ये एजिंग है, या डिमेंशिया है, या कोई और साइकोसोमेटिक इलनेस है, या ये डिप्रेशन है। तो अगर मैं सिम्टम्स, डायग्नोसिस हम उसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं होम्योपैथी में, इंडिविजुअलाइजेशन, टोटलिटी, होलिस्टिक अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो हमारे पेशेंट्स हैं, इनके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें उसकी सिविरिटी जांचना जरूरी है, और आगे जाके हमें अपने जो केस रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश करना है, हमें रिसर्च करनी है, हमने एस्टैब्लिश करना है अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का एफिकेसी, और उससे भी आगे बढ़ना है। तो हमें डायग्नोसिस और जो बहुत सारे स्केल्स आते हैं जिसकी मैं आगे डिस्कशन करूंगी, अब उन चीजों पर भी ध्यान देना हमारा जरूरी हो गया। तो फिर आ गया सिविरिटी असेसमेंट। हमें देखना है कि पेशेंट जो है डिप्रेशन का, क्या माइल्ड डिप्रेशन से सफर कर रहा है, क्या मॉडरेट से वो परेशान है, या वो सिवियर डिप्रेशन सफर कर रहा है, या फिर इतना उसमें हो गया कि सिविरिटी इतनी है कि क्या वो केस हमें रेफर करना है कि अपने पास रखना है। तो ये चीजें भी हमें, जजमेंट हमारी इसमें होनी चाहिए। देन मेडिकल कॉजेज रूल आउट करनी है, क्योंकि कई बार हाइपोथायराइडिज्म होता है, और बीमारियां हैं उसमें जो है वो डिप्रेशन सेकेंडरी है। जब वो बीमारी हम ठीक कर देंगे तो डिप्रेसिव इलनेस के जो सिम्टम्स है वो अपने आप चले जाएंगे। फिर डिमेंट, वैसे तो सारे कोग्निटिव डिसऑर्डर्स जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जो बुजुर्गों में 60 के ऊपर की जो हमारी पॉपुलेशन है, जिनको हम ओल्डर एडल्ट्स में काउंट करते हैं, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में काउंट करते हैं, उनमें हमें डिमेंशिया ज्यादा मिलता है। तो डिफरेंशिएट डिमेंशिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और बाकी सारे कोग्निटिव डिसऑर्डर से भी हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आना चाहिए। और फिर पेशेंट की लाइफ स्टोरी, होम्योपैथ्स तो सुनते हैं पेशेंट्स को, वो सारा सुनते हैं, उनका प्रेजेंट भी सुनते हैं, पास्ट भी सुनते हैं, फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं वो भी सुनते हैं। तो उनकी पेशेंट की लाइफ स्टोरी को वो हम अंडरस्टैंड हम लोग करते हैं, और हमें करना भी है, इसमें जरूरी है। अगर सेवेरिटी क्लासिफिकेशन जिसकी हमने पिछली स्लाइड में बात करी है, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, तो माइल्ड में कोई भी बीमारी है उसमें हम माइल्ड में बोल देते हैं कि सिम्टम्स कम है,
फंक्शनल इम्पेयरमेंट है और वो भी बहुत कम है, तो वो माइल्ड डिप्रेशन में हम उस पेशेंट को काउंट करेंगे, माइल्ड डिप्रेसिव इलनेस है। अगर मॉडरेट में हम कि सिम्टम्स जो हैं वो अच्छे खासे हमें मिल रहे हैं, ठीक है, और फंक्शनल इम्पेयरमेंट माइनर नहीं है, और डिस्ट्रेस भी ज्यादा है, डिसेबिलिटी ज्यादा है पेशेंट को, तो वो मॉडरेट डिप्रेसिव इलनेस में हम उसको कैटेगराइज करेंगे। फिर आ गया सवेयर, उसमें मार्क्ड डिसेबिलिटी है, और जो पेशेंट है उसमें सुसाइडल थॉट्स हैं और सुसाइड करने का रिस्क भी है, तो हमें उसमें पेशेंट का जो है वो सिवियर डिप्रेसिव इलनेस में हम उसे उसको कैटेगराइज करेंगे। अब एक आ गया इमीडिएट रेफरल, इसको हमने अलग किया है। जैसे एक्टिव, एक होता है सुसाइडल थॉट्स, एक होता है हमें लगता है कि पेशेंट सेल्फ हार्म कर सकता है, बहुत चांस लग रहे हैं सेल्फ हार्म करेगा। साइकोटिक सिम्टम्स जैसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ज्यादा फिक्स्ड आइडिया है। देन स्वेयर निग्लेक्ट ऑफ सेल्फ केयर, जो सेल्फ केयर है वो अपनी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो अपने कपड़े नहीं बदल रहे हैं, उन्हें कंघी वंगी भी नहीं कर रहे हैं, खाने को मना कर रहे हैं, पानी पीने को मना कर रहे हैं, और जो नॉर्मल एक रूटीन है उससे बिल्कुल हटके बिल्कुल अलग थलग बैठे हुए हैं, किसी से बात करना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल विड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है अपने आप को, और सिवियर एजिटेशन है, उनमें वायलेंस हो जा रही है, या बिल्कुल सडनली बिल क्वाइट हो गए, बहुत ज्यादा क्वाइट हो गए हैं। तो इस चीज में हमें देखना है कि इस पेशेंट को इमीडिएट रेफरल की जरूरत है, तो हमें करनी है। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की जो एल्डरली पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। तो जिस सबसे पहले जिसको हमने लिखा है कोग्निटिव डिसऑर्डर एंड डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है कोग्निटिव डिसऑर्डर ही है, लेकिन फिर से अलग से उसको एम्फसाइज किया है हमने। देन मूड एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, देन एंजाइटी डिसऑर्डर्स, साइकोसोशल फैक्टर्स एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। तो ये कॉमन जो है हमारे एल्डरली पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। अब डिप्रेशन वर्सेस डिमेंशिया। अब डिप्रेशन जो है उसका ऑनसेट डिमेंशिया के हिसाब से, डिमेंशिया में बहुत ग्रेजुअल होता है, डिप्रेशन में रैपिड है, डिमेंशिया से रैपिड है। एक ऑनसेट रैपिड भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, लेकिन जितना डिमेंशिया में ग्रेजुअल है उतना ग्रेजुअल नहीं, उससे रैपिड इन कंपैरिजन relative to dementia's onset. Then complaints of memory loss डिप्रेशन में भी आ सकती हैं, डिमेंशिया में तो है ही है मैनी वो, लेकिन डिप्रेशन में हम देखेंगे जब हम डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे कि जब पेशेंट का मूड अच्छा है तो उसकी मेमोरी भी इम्प्रूव्ड होती है। बहुत सारे पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि अगर मूड अच्छा चल रहा है और पेशेंट ठीक है तो फॉरगेटफुलनेस इतनी नहीं मिल रही है हमें, जो नॉर्मल एजिंग की होती है वो है, लेकिन बहुत ज्यादा मेमोरी लॉस जिसकी कंप्लेंट हो रही है वो वेरिएबल है। देन डिमेंशिया में तो जो पेशेंट है उसमें मेमोरी लॉस है, बट वो तो डिनाई ही उसको सेल्फ जो है वो नहीं आता है कि हाँ मेरे को मेमोरी लॉस है। कई बोल पाते हैं, बता पाते हैं, कई रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि मेमोरी जो है उसमें डेफिसिट है। और डिप्रेशन में वेरिएबल परफॉर्मेंस है, मूड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और डिमेंशिया में तो कंसिस्टेंट डिक्लाइन ही होगा। देन डिप्रेशन में मूड सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे, और डिमेंशिया में कोग्निटिव सिम्टम्स जो ब्रेन रिलेटेड हमारे सिम्टम्स है, मेमोरी है और बाकी दूसरे सिम्टम्स है, वो ज्यादा हमारे रहेंगे। तो अब जेरियाट्रिक डिप्रेशन जो है इसको हमने अगर डिफाइन करना है, तो जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आते हैं, जो पीछे हमने इमोशनल सिम्टम्स पढ़े, साइको सोशल फैक्टर्स पढ़े, देन फिजिकल सिम्टम्स पढ़े, तो ये सारे जो हैं ये इस सिंड्रोम का पार्ट है। तो आफ्टर 60 years ऑफ एज अगर हम ले, 60 हमारी कट ऑफ है, तो वो जियाट्रिक डिप्रेशन में हम उसको काउंट कर लेते हैं। अब ऑफन इसके साथ इमोशनल कोग्निटिव और फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक टर्म हमारी आ गई ICD-11, दी इट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो 11 लिखा हुआ है तो 11th रिवीजन, पहले 10th चल रहा था,
अब 11th रिवीजन आ गया, तो ये रिवाइज होता रहता है टाइम टू टाइम और ये अपडेट होता रहता है। तो इसमें सारी बीमारियों को कोडिंग दी गई है। आप फीवर की देख सकते हैं, आप कफ की देख सकते हैं, आप जो भी डिजीजेस हैं उनकी आईसीडी कोडिंग जो है वो इसमें आपको मिल जाएगी। अब इसमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें 6A70 अगर डिप्रेसिव एपिसोड है, सिंगल है, तो हमने जब केस टेकिंग करनी है तो हमने उसको 6A70 में कैटेगराइज उसको लेबल कर देना है। अगर रेकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो 71 6A71। other specified depressive disorders 6A7Y। फिर 7Z में डिप्रेसिव डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। सो पर आप हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें एक जनरल डिप्रेसिव इलनेस की बात करी गई है, लेकिन एज से रिलेटेड कोई जेरियाट्रिक कोड या कुछ ऐसा नहीं है। अब आईसीडी 11 क्लासिफिकेशन में डिप्रेसिव एपिसोड में जो हमने अभी डिस्कस किया, माइल्ड जिसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स हमें कम महसूस हो रहे हैं, मॉडरेट इसमें महसूस हो रहे हैं, और वो मॉडरेट इंटेंसिटी में मॉडरेट फ्रीक्वेंसी में है, सिवियर तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और रेकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर इसमें मल्टीपल डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं, ठीक है। तो सिंगल में अभी जो हमारे पास पेशेंट आया है तो वो सिंगल एपिसोड की ही बात कर रहा है। अगर रेकरेंट है तो उसमें मल्टीपल हिस्ट्री में हमें मल्टीपल डिप्रेसिव एपिसोड्स, डिप्रेशन के जो मूड रिलेटेड हमें एपिसोड्स मिलेंगे वो हमें मल्टीपल मिलेंगे। तो इसमें ये इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम आईसीडी 11 यूज करते हैं तो ये हमारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड, इसके हिसाब से हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। आगे फिर हमें रिसर्च करनी है। रिसर्च हमारी छोटी रिसर्च केस रिपोर्ट से ही है। केस रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो हमारे यंगस्टर्स को पता लगता है कि हाँ जी डॉक्टर ने ये दवाई दी, हमारा पेशेंट ठीक हुआ। तो ये हमारा एक सोर्स बन जाता है लर्निंग का। और अगर हम इसको प्रॉपर रिसर्च में लेके जाएंगे, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, तो इसमें प्रोस्पेक्टिव स्टडीज हैं, पायलट स्टडीज हैं, तो ये हमें आगे अगर करनी है तो हमें कुछ जो है स्टैंडर्ड जो हैं वो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन में लेके आना है। अब आ गया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो जो डिजीज है उसको डायग्नोज करना है, तो डायग्नोज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया, जैसे माइग्रेन है, जब लास्ट टाइम मैंने लेक्चर दिया था माइग्रेन पे, तो हमने उसमें भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ओस्टियोआर्थराइटिस है उसमें भी कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, तो वो जरूरी है टू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस। इसमें अब हमने DSM-5 TR लिखा है, तो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑन मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन। TR इज टेक्स्ट रिवीजन, तो ये अपडेट होते रहते हैं। तो अभी ये जो हमारा DSM-5 का है, इसके हिसाब से अगर कोई हमारे पास पेशेंट, जो हमारा एल्डरली पेशेंट आ जाए, तो वो 5 या उससे ज्यादा, 5 या उससे ज्यादा सिम्टम्स बोले कि ये 2 हफ्ते के लिए प्रेजेंट थे, जैसे मेरा मूड डिप्रेस्ड था, मेरे को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था या कम इंटरेस्ट आ रहा था, या जो प्लेजर एक्टिविटीज होती हैं, टीवी देखना, बातें करना, गेम्स खेलना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, उसमें एक प्लेजर फील होता है। लेकिन अगर वो प्लेजर नहीं फील हो रहा उतना, एपिटाइट चेंज है, एपिटाइट चेंज में हम भूख ना लगना, कम लगना, भूख बहुत ज्यादा लगना, बिंज ईटिंग होना, तो ये सब एपिटाइट चेंज में आ जाएंगे। स्लीप डिस्टर्बेंस, अब इसमें भी दोनों चीजें, नींद आने में मुश्किल, नींद कम आना, नींद बहुत ज्यादा आना, और नींद उठने के बाद आपको उतना फ्रेश फील ना करना कि नींद तो पूरी ले ली फिर भी हम फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं। फिर बॉडी के साइकोमोटर चेंजेस हैं, फटीग, थकावट, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, पुअर कंसंट्रेशन, रेकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ। तो इनमें जो है ये हमारे सिम्टम्स, 5 या उससे ज्यादा सिम्टम्स अगर 2 हफ्तों के लिए प्रेजेंट होंगे, तो इनमें से लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो है और डिप्रेसिव मूड, इन दोनों में से एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, और बाकी जो 4 सिम्टम्स हैं
वो जितने हमने पूरे डिस्कस किया उसमें से कोई भी। लेकिन अगर डिप्रेसिव मूड या लॉस ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मिल रहा, तो हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर में उसको नहीं, डायग्नोसिस में नहीं लेके जा पाएंगे। अब DSM-5 वर्सेस ICD-11। अब DSM-5 जो है वो आया है अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन की तरफ से। ICD-11 जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इशूड है। DSM-5 हम रिसर्च में बहुत यूज करते हैं। इसका यूज रिसर्च में होता है, ये रिसर्च ओरिएंटेड है। एंड इसमें जो चेकलिस्ट है वो रिजिड है कि उसके हिसाब से डायग्नोसिस है, ये है तो डिप्रेशन है, नहीं है तो नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आगे इसको हमने रिसर्च में भी यूज करना है, आगे ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं। ICD-11 जो है इसमें ये ग्लोबली एक्सेप्टेड क्लिनिकल सिस्टम है, ये फ्लेक्सिबल है। इसमें कल्चर को भी ध्यान में रखा जाता है, अलग अलग कल्चर्स को ये सेंसिटिव है, और यहाँ पे होलिस्टिक प्रैक्टिस के लिए ये हमारा प्रेफर्ड है। अब अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं, तो जो हमारे एल्डरली एडल्ट्स हैं इंडिया में, उसमें 15 से 25% जो हैं उनमें डिप्रेशन की प्रेवलेंस है। ये कम्युनिटी बेस्ड स्टडी से डेटा लिया है। अगर प्राइमरी केयर या ओपीडी सेटिंग, जैसे हम अपनी क्लिनिक में हैं या ओपीडी में हैं, वहां पे 20 से 30% जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स हैं उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स मिलते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, जिसके आधार पे हम उनको डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डायग्नोस करते हैं। अगर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स की बात करें जो क्रोनिकली इल हैं, उसमें 30 से 40% एल्डरली पॉपुलेशन में हमें डिप्रेशन की प्रेवलेंस मिलती है। रूरल वर्सेस अर्बन, जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, सिटीज में है, बड़े बड़े शहरों में है, उनमें ज्यादा पाया जाता है ड्यू टू आइसोलेशन। एक तो ये रीजन है कि आइसोलेशन है, और क्योंकि अर्बन में अब आप देखिए कि सब अपने बिजी हैं, बच्चे आगे पढ़ने चले गए, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म होता जा रहा है, आइसोलेशन, लोनलीनेस। और दूसरा ये है कि रूरल एरियाज जो है, हमारी अर्बन पॉपुलेशन के पास एक्सेस ज्यादा है डॉक्टर्स के पास जाने का, तो फिर उनका कम्युनिटी बेस्ड स्टडीज में रिपोर्टिंग हो जाती है। जो हमारे रूरल एरियाज हैं उनमें जो है वो एक तो एक मन में कि वैसे रूरल में भी है, लेकिन अर्बन में तो है ही है, रूरल में उससे भी ज्यादा स्टिग्मा कि मेंटल इलनेस है, इसकी बात किससे करें, बात करनी भी चाहिए कि नहीं, कोई पागल तो नहीं समझेगा, ये चीजें भी दिमाग में, ये भी स्टिग्मा है। तो अंडर रिपोर्टिंग रहती है, अर्बन में रहती है, रूरल में उससे ज्यादा रहती है। और जो एक्सेस है टुवर्ड्स हेल्थ सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज, प्राइमरी केयर, हमारे पेशेंट ज्यादा, देन हॉस्पिटल में, रूरल में थोड़ा सा कम है उनका कंसल्टेशन का, तो इसलिए भी हायर प्रेवलेंस जो हमारे स्टैट्स में, हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा में, जो हमारी कम्युनिटी बेस्ड स्टडीज हैं, हमारी एपिडेमियोलॉजी है, उसमें अर्बन पॉपुलेशन का प्रेवलेंस हायर रहता है। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, फीमेल्स जो हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल्स। क्यों? क्योंकि एल्डरली विमेन लिविंग अलोन और उनका जैसे विडोज हैं, तो उनमें ज्यादा रिस्क रहता है। अब हमारी जो एल्डरली, जो हमारी पॉपुलेशन है, उनमें अब हम दोबारा से, हमने एक बार ये डिस्कस किया है कि क्यों उनमें ज्यादा डिप्रेशन जो है पाया जा रहा है, क्यों ज्यादा जरूरत है जेरियाट्रिक जो हमारा एज ग्रुप है उसमें ध्यान देने की डिप्रेशन के लिए। क्योंकि एजिंग में काफी इमोशनल चेंजेस हैं, कोग्निटिव चेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस भी हैं। फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, लॉस ऑफ स्पाउस, लॉस ऑफ नियर एंड डियर वंस, रिटायरमेंट है, जॉब पे नहीं जा रहे हैं, रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, फाइनेंशियल जो है वो हमारा जो है वो एक इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है, डिसेबिलिटी बढ़ रही है, और अपने आप को हम बर्डन समझ रहे हैं, हमारी सेल्फ स्टीम को धक्का लग रहा है, हम आइसोलेट हो रहे हैं, सोशली हम आइसोलेट हो रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। तो ये सारे स्ट्रेसर्स आ जाते हैं, ये इमोशनली, साइकोलॉजिकली, ये एजिंग का एक पार्ट है। कोग्निटिव फॉरगेटफुलनेस आ जाती है। तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ चलन बढ़ रहा है, और एल्डरली जो है हमारे, उनका निग्लेक्ट, उनकी लोनलीनेस है, उनको आ, उनकी जैसे हम
अभी भी हम जो इंडिया में स्पेशली साइकेट्रिक इलनेस को लेके हमारे दिमाग में एक स्टिग्मा रहता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करनी है, घर वालों से भी नहीं करनी है, बाहर भी नहीं करनी है। लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि ये पागल है या क्या है। तो इसके रिलेटेड भी ज्यादातर केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। और मेंटल हेल्थ सर्विसेज, काउंसलिंग्स, ये हमारी पॉपुलेशन को कम है, और रूरल इंडिया में तो बिल्कुल कम है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसकी वजह से एल्डरली जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें डिप्रेसिव इलनेस बहुत हद तक पाया जाता है। अब रिस्क फैक्टर्स, बार बार हमने ये हर स्लाइड में डिस्कस कर लिया कि लिविंग अलोन, अकेले रह रहे हैं, और इमोशनली उनको टाइम ही नहीं है किसी के पास, इमोशनली निग्लेक्ट हो रहे हैं हमारे एडल्ट, जो एल्डरली एडल्ट्स हैं। फिजिकल जो हमारी फैमिली है उसमें फैमिली बैठी है आसपास, पर इमोशनली अवेलेबल नहीं है। और एल्डरली जो हमारे, उनको इग्नोर्ड फील हो रहा है, उनको इम्पोर्टेंट नहीं, अन इम्पोर्टेंट नहीं कहती, लेकिन उनको अनइम्पोर्टेंट फील हो रहा है। इम्पोर्टेंस नहीं चाहते हैं वो कोई भी फैमिली मेंबर है, वो इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि जो मेरी फैमिली है मेरे लिए फिजिकली भी प्रेजेंट हो, इमोशनली भी अवेलेबल रहे। वो चीज नहीं हो पाती है। और जो फीलिंग्स हैं, रूटीन की फीलिंग्स दूसरी, वो अनहर्ड रह जाती हैं। सो वो शेयरिंग नहीं हो पाती है। फिर पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन में प्रीवियस डिप्रेसिव एपिसोड्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ रेकरेंस, ऑफन ट्रिगर्ड अगेन बाय एजिंग। कई बार क्या होता है कि एडल्ट चाइल्डहुड में, या जब हमारी एज 20 साल है, 30 साल है, 40, तब कभी डिप्रेशन हुआ किसी वजह से, वो कुछ एपिसोड्स हुए, उनका ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन जब एजिंग हुई तो जो बाकी सारे फैक्टर्स, जो चीजें हमने पढ़ी कि एज में ये सारी स्ट्रेसेस होती हैं, तो तब ये फिर से ट्रिगर हो गया। अब क्रोनिक पेन हमने बात करी, ओस्टियोआर्थराइटिस है, कमर में बैक पेन बहुत कॉमनली, और इतनी हर टाइम रहती क्रोनिक पेन जो है, हर टाइम रहना पेशेंट का मूड डिस्टर्ब करती है। न्यूरोपैथीज, नींद ना आना ढंग से, उसकी वजह से इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करता है। देन अल्कोहल यूज हो, या नींद, लॉन्ग टर्म सेडेटिव्स, नींद की दवाई बहुत देर से ले रहे हैं, और एक डर मन में कि हाँ एजिंग से मेरे में ये चीजें हो जाएंगी, मेरे में पुअर कंसंट्रेशन हो जाएगी, मेरे को फॉरगेटफुलनेस आ जाएगी, मेरी मेमोरी वीक हो जाएगी, मैं एक बर्डन बन जाऊंगा, मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें एक एनजाइटी का एक साइकिल क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से मूड जो है वो डिप्रेस रहना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से आगे चेंजेस आती हैं माइंड में, बॉडी में, और ब्रेन में, और उसकी वजह से एक विशियस साइकिल बन जाता है विच लीड्स टू डिप्रेशन। अब कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, जो पेशेंट अगर हमारे पास आएगा तो बोलेगा परसिस्टेंट वीकनेस, वीकनेस जो है वो रहती ही है। नींद होती है या तो होती नहीं है, होती है तो डिस्टर्ब रहती है, अगर डिस्टर्ब नहीं है तो रिफ्रेशिंग नहीं है, सोने के बाद उठता हूँ तो फ्रेश नहीं फील करता हूँ। रूटीन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट मेरा बिल्कुल जो है वो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। बॉडी पेन्स है, पर उसकी कोई क्लियर पैथोलॉजी नहीं मिल रही है हमें। रिड्यूस्ड एपिटाइट और ओवर ईटिंग, भूख ज्यादा लगना या कम लगना या बिल्कुल ना लगना। फिर सोशल इंटरेक्शन, सोशल विड्रॉल हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन कम हो रहा है। पेशेंट लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे अरसे तक पेशेंट जो है वो क्वाइटली बैठ रहा है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहा है। केयर गिवर जो है उनका काम बढ़ता जा रहा है। अगर केयर गिवर्स पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि वो जो हमारे एल्डरली पेशेंट है वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिन चीजों पे रख रहे थे उस पे भी नहीं रख रहे हैं, इसीलिए केयर गिवर पे और डिपेंडेंसी बढ़ रही है। तो ये सारी चीजों के साथ प्रेजेंट करेगा क्लिनिकली हमारा पेशेंट। अब आगे जो है जेरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल, ये अब स्केल्स जो हैं, अब मेरा ये मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक, टोटलिटी, होलिस्टिक, वो हमने करनी ही है। लेकिन अगेन, अब होम्योपैथी में बहुत जरूरत है रिसर्च की, और लॉन्ग टर्म रिसर्च की।
बहुत जरूरत है। तो इसीलिए हमें ये चीजें जो है ICD-11, DSM-5, ये GDS, इनका यूज करना है। तो अब GDS के बारे में, जैसे हमारा पेशेंट आता है, इसे हमें आउटकम असेसमेंट मिलती है कि और हमें हेल्प मिलती है कि हमारी दवाई काम कर रही है कि उसकी असेसमेंट। ये हमारे पास एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। जैसे माइग्रेन में हम बोलते हैं मिडाज है। अगर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट से पहले मिडाज जो है वो रिकॉर्ड कर लें, उसका स्कोर ले लें, और फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ले लें 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर 9 महीने के बाद, क्योंकि उसका 3 मंथ का एक स्पैन रहता है। तो उसमें अगर हम वो ले लेते हैं, तो उसमें जो हमारा मरीज है वो हमें पता लगता जाता है कि हम एज अ होम्योपैथ वैसे भी जज करते हैं, लेकिन जब केस रिपोर्ट पब्लिश करनी है, PhD में काम करना है, MD में काम करना है, आगे हमें केस रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है, रिसर्च लेके आनी है, तो ये क्लिनिकल आउटकम्स हो गए या स्क्रीनिंग हो गई पेशेंट्स की एज पर द क्राइटेरियाज, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, डायग्नोसिस के लिए जरूरी है। उसके बाद हमें उसका ट्रीटमेंट का आउटकम देखने के लिए चीजें बहुत जरूरी हैं। तो ये आगे स्केल्स हैं डिफरेंट, कुछ स्केल्स हैं जो ट्रीटमेंट का आउटकम देखने में हमें हेल्प करते हैं, कुछ हमें स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, कुछ दोनों में हेल्प करते हैं, एक ही स्केल दोनों में भी हेल्प कर रहा है। देन अब स्कोरिंग, एक GDS-30 लिखा है स्क्रीन पे, एक GDS-15 लिखा है। तो जो GDS-15 है वो 30 का ही छोटा वर्जन है। GDS-30 में ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 15 में आधे रह जाते हैं क्वेश्चंस। तो उसमें अगर 0 to 9 स्कोर होएगा, आगे मैंने स्केल भी डिस्कस करना है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। तो उसमें हम बोलेंगे नॉर्मल है पेशेंट, 10 से 19 तक स्कोर आ गया तो माइल्ड डिप्रेशन है, तो 20 से 30 में आ गया तो हम स्वेयर डिप्रेशन को कहते हैं। GDS-15 में स्कोरिंग चेंज 0 to 4 है तो नॉर्मल है, 5 to 8 में माइल्ड डिप्रेशन है, 9 से 11 आ जाए तो मॉडरेट है, अगर 12 से 15 आ गया तो स्वेयर है। लेकिन GDS-15 जो है वो ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये इसको टाइम कम लगता है फिल करने में। तो हमारे जो एल्डरली एडल्ट्स हैं, दे आर कंफर्टेबल कि ये भर दिया जाए, इससे भी हमें एक अच्छी असेसमेंट जो है वो मिल पाती है। ये मैंने देखिए स्केल डिस्कस किया है। इसमें देखिए सवाल क्वेश्चंस हैं। अब आर यू बेसिकली सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, ये यस नो में आ जाते हैं कि हैव यू ड्रॉप योर एक्टिविटीज, इससे में लॉस ऑफ इंटरेस्ट का पता लग जाता है। योर लाइफ इज एम्प्टी, इसमें और चीजें, लोनलीनेस, आइसोलेशन, ये पता लगता है, प्लेजर नहीं है वो पता लगता है, सेल्फ वर्थ कम हो रही है ये पता लगता है, ऑफन गेट बोर्ड, तो इसमें यस नो बता सकते हैं। आर यू इन गुड स्पिरिट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इससे हम मूड का एक अंदाजा लगा पाते हैं। आर यू अफ्रेड दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन टू यू, डू यू फील हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम, डू यू फील ऑफन फील हेल्पलेस, आपको हर टाइम हेल्पलेसनेस फील होती है, आपको हर टाइम खुशी नहीं फील होती है, क्या आप हैप्पी नहीं फील कर पा रहे हैं, सैड फील करते हैं, उदास फील करते हैं, आपको मेमोरी में कोई दिक्कत आ रही है, आपको अपने आप में ये वंडरफुल फील नहीं होता है कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि अलाइव होना भी एक वंडर है। वी शुड फील वंडरफुल, हमें वंडरफुल फील करना चाहिए कि हम अलाइव है। एवरी टाइम वी शुड थैंक टू गॉड फॉर एवरी ब्रेथ वी आर टेकिंग। तो वर्थलेस तो नहीं लगता अपने आप में, ये तो नहीं लगता कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, वर्थ ही नहीं है। एनर्जी कैसा लगता है आपको, सिचुएशन होपलेस तो नहीं लगती है। तो ये पेशेंट जो है इसमें, अगर ये यस नो करके हम एक नंबर हर एक क्वेश्चन का दें, तो स्कोरिंग करके हम पता उसको स्क्रीन कर लेते हैं कि ये माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर डिप्रेशन। ये लॉन्ग फॉर्म है, तो इसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं। अब आ गया हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिमेंशिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब आ गया डिमेंशिया वर्सेस स्यूडो डिमेंशिया। अब इसमें स्यूडो डिमेंशिया जो है वो हम डिप्रेशन की, एक तो है आई डोंट नो। अब डिमेंशिया है ना, तो कोग्निटिव ब्रेन में इफेक्ट आएगा, तो उसको पता ही नहीं मेमोरी। डिप्रेशन वाला तो बोलेगा मेमोरी में मुझे कंप्लेंट है, क्योंकि इसका तो ब्रेन परफेक्टली ठीक ही काम कर रहा है। डिमेंशिया में तो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डिप्रेशन में ज्यादा हमारा मूड रिलेटेड ये आ जाता है। फिर एंडोक्राइन में, जैसे मैंने आपको अभी मेडिकल कॉजेज का डिस्कस किया था फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स में, हाइपोथायराइडिज्म हो, अनीमिया हो, HB की कमी है, विटामिन B12 की कमी है,
इलेक्ट्रोलाइट्स भी अगर इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कई बार मिमिक करती हैं डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन असली में होता नहीं है, लेकिन इनकी वजह से, और ये अगर ठीक हो जाते हैं तो डिप्रेसिव जो सिम्टम्स है अपने आप चले जाते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड डिप्रेशन, कई बार कुछ दवाइयां ऐसी ली जा रही हैं जिसके साइड इफेक्ट्स में जो हमारा मरीज है उसको डिप्रेशन फील हो रहा है। ये दवाइयां बदली जाएं या कम करी जाएं, या दूसरे कन्वेंशनल जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं उन पे आया जाए, तो ये ड्रग इंड्यूस्ड डिप्रेशन जो है इस पे भी हम इसको कम कर सकते हैं। देन क्रोनिक मेडिकल पार्किंसंस डिजीज है, कार्डियक हार्ट जो रिलेटेड हृदय रोग हैं, जो क्रोनिक किडनी डिजीजेस हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें भी जो पेशेंट है उसमें उसको डिप्रेशन मिमिक करेगा। अब अगर तो ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, एंडोक्राइनल न्यूट्रिशनल कॉजेज, ड्रग्स में हम कर पाए, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर रिप्लेस कर पाए तो पेशेंट में अगर डिप्रेसिव सिम्टम्स कम होते हैं या खत्म हो जाते हैं तो वो ड्रग इंड्यूस्ड में। अब क्लिनिकल चैलेंजेस, जब हम एल्डरली पेशेंट के साथ डील करते हैं तो हमारे जो एल्डरली पेशेंट हैं वो इमोशनली अपने आप को डिटैच, बहुत सारे जो है टाइम उनका इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं मिला उनको, उनको इमोशनल हियरिंग ही नहीं मिली, तो वो फिर उनमें डिटैचमेंट जो है, इमोशनल ब्लंटनेस आ जाती है। फिर लाइफस्टाइल जो है उनका, उसमें भी हमें मॉडिफाइड पिक्चर मिलती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी साथ में और बीमारियां और दवाइयां और बहुत सारी जो सरकमस्टेंशियल चीजें हैं वो चल रही हैं। फिर इम्प्रॉपर केस टेकिंग, कई बार फैमिली हिस्ट्री में होता है जो है, ये कई बार फैमिली जो है हमें जो हिस्ट्री देती है उसमें कुछ और डिजीज पिक्चर मिल रही है, पेशेंट जो बोल रहा है उसमें कुछ और मिल रही है। देन ऑल्टर्ड जो है हमारी ससेप्टिबिलिटी, इन एल्डरली मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो लीड कर रहे हैं कि जो हमारी रेमेडीज है उनका रिस्पॉन्स जो है वो उतना जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उतना नहीं, हम ससेप्टिबिलिटी जजमेंट भी मुश्किल हो रही है, ऑल्टर्ड भी है। तो हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम अपने एल्डरली पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है हमने उसको कैसे करना है। अब होम्योपैथी हमारी एज अ होल मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स ना, तो जेनेटिक केसेस में डिप्रेशन तो और सिग्निफिकेंट हो गया और इम्पोर्टेंट हो गया। वाइटल फोर्स की डीरेंजमेंट, माइंड जो है उसमें डिजीजेस एंड डिस्पोजिशन, वो हमारा जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल हैनीमन हमारी वाइटल फोर्स की डीरेंजमेंट रिफ्लेक्ट हो गई इसमें। इंडिविजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पता करना, पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता करना, इमोशनल अडेप्टेशंस जो इतने सालों में पेशेंट ने करी हैं उनको भी कंसिडर करना है। मेंटल जर्नल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है ओवर फिजिकल जर्नल्स। ठीक है, फियर, एंजाइटी, ग्रीफ, इरिटेबिलिटी, इनडिफरेंस, चेंजेस इन पर्सनैलिटी, मेमोरी, इमोशनल रिस्पॉन्स, तो ये सारी चीजें जो है हमारी हमने मेंटल जर्नल्स जो हमारे इनको इंपॉर्टेंस ओवर फिजिकल पर्टिकुलर्स। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हमने उसका इमोशनल इक्विलिब्रियम पेशेंट का रिस्टोर करना है, उसकी फंक्शनल इंपेयरमेंट कम करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इसको भी करने के जज बहुत सारे स्केल्स हैं, और वो भी अगर हम टाइम टू टाइम पेशेंट में डॉक्यूमेंट करें, तो जब हम रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे हैं उसमें हमारी बहुत हेल्प होती है कि ये देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने ये हमारे आए हैं, तो इसमें पहले ये स्कोर था अब ये हो गया, तो वो आउटकम जो है हमारी वो और अच्छी एस्टेब्लिश होती है। तो यहाँ पे केस टेकिंग स्ट्रेटजी है, इसमें हम मेंटल कंप्लेंट्स से ही बिगिन करते हैं, नॉट डायग्नोसिस। आइडेंटिफाई करते हैं चेंजेस जो उसकी प्रीवियस पर्सनैलिटी में थी, फिर उसके सारे जो है फियर्स, हेल्थ डिपेंडेंसी, लोनलीनेस, डेथ और बहुत सारी चीजें जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग करनी है, तो सब एक्सप्लोर करना है। फिर उसके फिजिकलिटीज, फिजिकल जर्नल्स एक्सप्लोर करने हैं। फिर जो इम्पैक्ट है साइको सोशल स्ट्रेसर्स का, रिटायरमेंट, बिरीफमेंट, सोशल आइसोलेशन, उसको भी हमने इवेलुएट करना है। देन
फिर हमने केयर गिवर जो हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करनी है। और उनको, क्योंकि पेशेंट जो है, एल्डरली पेशेंट, कई बार वो नहीं देते हैं इतना अपना हिस्ट्री, तो हमें उनका जो, जैसे हम बच्चों में भी केयर जो गिवर है उसकी हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देते हैं, यहाँ भी देनी पड़ेगी। देन ओवर पैथोलॉजी बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग हम नहीं, उस पे हम रिलाई नहीं करते हैं। अब सपोर्टिव मैनेजमेंट विद होम्योपैथी, होम्योपैथी रोल जो है वो आ, हमारा सिर्फ फिजिशियन का रोल नहीं है, काउंसलर का भी है, गाइड का भी, और हम करते हैं। फीवर का पेशेंट आ जाए उसमें भी करते हैं, ये तो फिर डिप्रेसिव इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम है, इसमें तो करना ही है। देन असेंशियल काउंसलिंग में हमें यानी रूटीन एनकरेज करनी है, उनकी रूटीन स्ट्रक्चर करके देनी है उनको, दोबारा से उनके साथ डिस्कस करना है और इकट्ठे मिल के एक स्ट्रक्चर तैयार करना है रूटीन का। लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन के बारे में बात करनी है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी है। केयर गिवर्स को भी एजुकेट करना है और उनको भी बताना है कि क्या आप एक्सपेक्ट करिए, क्या ना एक्सपेक्ट करिए, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं। देन कन्फ्रंटेशन, अगर डिल्यूजन आते हैं उसको कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है। फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको प्रमोट करना है उनमें, बाहर पेशेंट का डेलाइट एक्सपोजर भी जरूरी है। होप जो है वो जरूर देनी है, बट फॉल्स अश्योरेंस में हमें नहीं जाना है। फिर कॉमनली जो हमारी इंडिकेटेड रेमेडीज हैं, कैलकेरिया कार्प जिसमें एंजाइटी अबाउट हेल्थ रहती है, फियर ऑफ फ्यूचर, पॉवर्टी, इनसिक्योरिटी, एल्डरली विद डिपेंडेंस ऑन अदर्स, लाइकोपोडियम है तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर रिटायरमेंट, फियर ऑफ फेलियर बट अपीयर्स कॉन्फिडेंट आउटवर्डली, बेटर विद रीअश्योरेंस, और मेट है हमारे पेशेंट, उसमें क्या मिलेगा, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, फेलियर, डिप्रेशन विद सुसाइडल थॉट और गिल्ट, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, कॉमन इन रिटायर्ड प्रोफेशनल्स। In netromure में साइलेंट ग्रीफ, सप्रेस्ड इमोशंस, dwelling on past losses, avoid consolation. CPR में इमोशनल इंडिफरेंस, aversion to family, often in elderly women with long caregiving history. Ignatia हमारा recent grief, emotional shock, sighing, lump-like feeling, sensation in throat, useful in early phases of depression. कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं जो हमने कैंट रिपर्टरी से, जैसे माइंड में सैडनेस, माइंड में डिप्रेशन, माइंड में डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, माइंड में सुसाइडल डिस्पोजिशन। फिर सिंथेसिस रिपर्टरी से माइंड में डिप्रेशन, ओल्ड पीपल इन, माइंड फोर सेकंड फीलिंग, माइंड का एंजाइटी, फ्यूचर अबाउट, फ्यूचर के प्रति एंजाइटी, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, जो ग्रीफ है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेशेंट जो एलिमेंट्स जो सफर कर रहा है। मर्फी से माइंड में डिप्रेशन, एल्डरली, फिर माइंड में सैडनेस, लॉस फ्रॉम, माइंड में इनडिफरेंस, फैमिली टू। अब क्लिनिकल केस स्टडीज हमने कुछ क्लिनिकल केस स्टडीज हमने उसको इंक्लूड किया इसमें, जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल कोहॉर्ट स्टडी, इसमें आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल टायर जो पब्लिश्ड है क्लॉस 1 में, और रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल, डबल ब्लाइंड, हमारे पेशेंट को भी नहीं पता कि उसको क्या दिया जा रहा है, और हमारे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको भी नहीं पता कि कौन सा प्लेसिबो ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है जिसको की मेडिसिन दी जा रही है। तो इसका भी जो पब्लिकेशन है, सो ये किया, इसको हमने स्टडी किया। तो पॉपुलेशन अंडर स्टडी, एल्डरली पेशेंट विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और दूसरे में जो दूसरी स्टडी है उसमें पेरी और पोस्ट मीनोपॉजल विमेन विद डिप्रेशन। तो ये एक इंटरवेंशनल मॉडल है। इंटरवेंशनल मॉडल मींस कि हम इसमें इसमें उन्होंने इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया है, इंटरवेंशन जो है वो दी है ड्रग की। थेरापेटिक्स में भी करते हैं रिसर्च, तो इसमें इंडिविजुअलाइज्ड जो है वो लिया गया है। तो इसमें स्टडी 1 में एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो कंडीशन, स्टडी 2 में मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन। देखिए असेसमेंट टूल्स भी लगाए हैं, इंटरवेंशन दोनों में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। कंपैरिजन पहले में एलोपैथिक ट्रीटमेंट का भी एक ग्रुप जो है वो लिया गया, इधर फ्लो प्लेसिबो और साथ में एक दूसरा जो एंटी डिप्रेसेंट है। फॉलो अप देखिए, एक का 12 मंथ, एक का 6 वीक, आउटकम जो है वो स्टडी किया गया। तो इन स्टडी से इम्प्रूवमेंट इन डिप्रेशन पाया गया। जो है साइकोट्रोपिक मेडिकेशन है उस पे रिलायंस कम हुआ। तो ये जो WHO है उसका मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम, जिसमें सिम्टम कंट्रोल जो है
वो एनहेंस करना है, मेडिकेशन पे डिपेंडेंसी कम करनी है, प्राइमरी केयर जो है वो स्ट्रेंथन करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा है, मैं फिर से जो एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि जो हमारे रिसर्च एरियाज उसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं, प्रैग्मेटिक ट्रायल्स हैं, जो पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स हैं, ये सारे तो हैं, लेकिन हमें ज्यादा हाई क्वालिटी रिसर्च की तरफ जाने की जरूरत है। हमारी जो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हो, और उसमें भी प्लेसिबो ग्रुप हैं, हमारे मेडिसिन के ग्रुप हैं, साथ में एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी ग्रुप बन जाए। तो ये जो हमारी रिसर्च इसमें स्केल्स यूज हो, स्कोरिंग सिस्टम्स यूज हो, सो दैट साइंटिफिक आउटकम्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड। क्योंकि रिसर्च जो है, क्योंकि अगर हम रिसर्च नहीं करते हैं, अगर हम अभी रिसर्च की तरफ नहीं अपना ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं पब्लिश और पेरिश, तो फिर काम खत्म हो जाएगा। तो हमें अपनी होम्योपैथी को स्ट्रेंथन करना है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। हमें अब रिसर्च करनी है। और क्योंकि मैं पीएचडी स्कॉलर हूं, मैं बार बार इस पे ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम वही चीजें कर रहे हैं। तो मुझे ये भी बहुत, ये ड्यूरिंग पीएचडी फीलिंग आती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पता था, अब ज्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब हम जब कर रहे हैं तो हमें पता लगता है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूंगी कि होम्योपैथी डज नॉट जस्ट एड ईयर्स टू लाइफ, बट एड्स लाइफ टू ईयर्स। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सही बात का सही कोटेशन के साथ इन किया है कि होम्योपैथी के साथ ओनली एज नहीं बढ़ती बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। और ऐसा हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा भी है कि जैसे कैंसर के भी पेशेंट्स हैं जिनके लास्ट स्टेज में बहुत पेन वेन उनको सहना पड़ता है, लेकिन होम्योपैथी के साथ बहुत उनको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है किसी भी केस को। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छे से समझाया और सही कहा है, रिसर्च की बहुत इम्पोर्टेंस है। और जिसको अब हमारे अथॉरिटी भी समझ रहे हैं, और बीएचएमएस में भी इसको रिसर्च फील्ड को इंक्लूड करने के लिए कुछ प्रयास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हिंदी सेशन का समय समाप्त होने वाला है, सो हम क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते हैं। मैं पूरे आईएफपीएच की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने समय अपने निकाला और हमारे साथ जुड़े, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बहुत अच्छे ढंग से आपने अपने व्यूज रखे हैं, आपने बहुत अच्छे से समझाया, जो कि एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के साथ साथ स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत उनके लिए भी मार्गदर्शक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसी के साथ ही हमारे हिंदी सेशन का समय समाप्त होता है और मैं ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू धानेश सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।